Hello and welcome to the online classes organized by CL Public School, Narwal. Good morning dear students. Students, in this video we will solve the questions which are generally asked in competitive exams, like this one that you can see. In this question there is pi raised to the power e on one side and e raised to the power pi on the another side. Similarly, more questions can be formed. 2019 raised to the power 2020, 2020 raised to the power 2019, and you have to compare this side with this side. इन दोनों में से बड़ी साइड कौन सी लिखी है, पाई रेज टू द पावर ई बड़ा है या फिर ई रेज टू द पावर पाई बड़ा है. There are a lot of questions that can be formed on this pattern. Sometimes the questions are also related from the trigonometry as well. Suppose sin 20 degree raised to the power cos 20 degree or cos 20 degree raised to the power sin 20 degree, which one will be greater? All right, all these questions are of similar type and the procedure to solve this question is this. Students, the videos are organized by CL Public School. Students, I suggest you personally not to share these videos and these Zoom IDs and passwords or our assignments or our tests with students of other schools, alright, because it can cause some problems, alright. So the procedure to solve these type of questions is that you define a function. According to the question, जिस टाइप से क्वेश्चन है उसी टाइप से एक फंक्शन हमको डिफाइन करना होगा. ऑलराइट, इफ वी हैव टू कंपेयर पाई रेज्ड टू द पावर e and e raised to the power pi, if we have to compare these two, then first of all what do we do is that on this side there are two constants pi and e, and on that side there are two different constants e and pi. पहले काम ये करेंगे कि दोनों तरफ एक ही टाइप का कांस्टेंट आए. सपोज बीच में कुछ सिंबल आ रहा होगा, लेस देन या फिर ग्रेटर देन, कोई भी सिंबल आ रहा होगा, डजंट मैटर. बट वन थिंग दैट वी आर श्योर इज दैट बोथ ऑफ दीज आर पॉजिटिव नंबर्स. अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं, जैसे 7 इज लेस देन 9, तो दोनों तरफ अगर आप रेज टू द पावर 1/4 भी कर दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना. 7 इज लेस देन 9, तो 7 की पावर 1/4 भी 9 की पावर 1/4 से छोटा होगा. तो अगर पाई रेज टू द पावर ई रेज टू द पावर पाई से छोटा है, तो दोनों तरफ अगर आप 1/e पाई और 1/e पाई, अगर ये पावर दोनों तरफ रेज कर देंगे तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा. हमको नहीं पता कि ये छोटा है या बड़ा है, जो भी है, जो भी सिंबल आ रहा है बीच में वो सिंबल चेंज नहीं होगा, बस हमको ये पता है. ऑलराइट, तो अगर ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से छोटी है, तो अगर पावर भी दोनों तरफ रेज कर दी कुछ, तो फिर कोई डिफरेंस नहीं आएगा. ऑलराइट, अगर x रेज टू द पावर m है और पूरे की पावर n है, x रेज टू द पावर n होल रेज टू द पावर n, तो ये हो जाता है x रेज टू द पावर mn. ठीक है, ऐसे ही पाई रेज टू द पावर e और पूरे की पावर 1/e पाई, तो ये बन जाएगा पाई रेज टू द पावर e अपॉन e पाई, और यहां बन जाएगा e रेज टू द पावर पाई अपॉन e पाई. e से e कट गया, इधर पाई से पाई कट गया. यानी कि what we have to compare is pi raised to the power 1/pi and e raised to the power 1/e. So question ये है कि pi raised to the power 1/pi बड़ा है या फिर e raised to the power 1/e बड़ा है. अब हम डिफाइन करेंगे यहां से एक फंक्शन x raised to the power 1/x और चेक करेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है. अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ, चलिए वो हम देख लेंगे जो भी है, पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं.
सपोज कोई एक फंक्शन डिक्रीजिंग है, x1 x2 y1 y2, y1 is equal to f of x1 and y2 is equal to f of x2। ये बात मैंने आपको क्लास में बताई थी कि अगर x2 ग्रेटर देन x1 होगा देन f of x2 विल बी लेस देन f of x1 होगा। अगर x2 x1 से बड़ा है तो f of x2 f of x1 से छोटा होगा इन केस ऑफ द डिक्रीजिंग फंक्शन। इन केस ऑफ द इंक्रीजिंग फंक्शन अगर x2 x1 से बड़ा है इंक्रीजिंग फंक्शन में तो f of x2 भी f of x1 से बड़ा होगा। दिस इज द होल लॉजिक बिहाइंड ऑल दिस। We will check whether this function is increasing or decreasing, and then according to that we will take our call. Alright? So stay with me please and tell me, try to solve on your own what will be the differentiation of this function. X raised to the power 1 by x, इसका differentiation क्या होगा? f dash x। शॉर्टकट तरीका, इस x को x ही मानो और इस वाले पोर्शन को कांस्टेंट मान लो। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई, ये बाहर आ जाता है और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, प्लस x की पावर 1 बाई x। अब की बार इस वाले x को वेरिएबल मानना है और इसको कांस्टेंट मानना है, सो मल्टीप्लाइड बाय -1 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लॉग नेचुरल एक्स। इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। 1 बाई एक्स, एक्स पावर 1 बाई एक्स इंटू एक्स की पावर -1 यानी कि अपॉन एक्स, प्लस एक्स पावर 1 बाई एक्स इंटू -1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू लॉग नेचुरल एक्स। सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन में आ गया, एक्स रेज टू द पावर 1 बाई एक्स ये भी कॉमन आ गया, और यहां पर बचा 1 माइनस लॉग नेचुरल एक्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, 1 माइनस लॉग नेचुरल एक्स अंदर ये बचा और ये वैल्यू आ गई एफ डैश एक्स की। अब देखिए ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, कंसीडरिंग एक्स इज पॉजिटिव, एक्स डेफिनेटली पॉजिटिव है यहाँ पे। ओके, नेगेटिव वाला केस नहीं ले रहे, केवल और केवल पॉजिटिव वाला केस है। x पावर 1 बाई एक्स इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, x स्क्वायर इज ऑल्सो ए पॉजिटिव क्वांटिटी। f डैश x का अगर साइन डायग्राम बनाना होगा, f डैश x का अगर साइन डायग्राम बनाना होगा तो हम बोल सकते हैं कि ये क्वांटिटी जीरो कहां पर होगी, एट x इक्वल टू ई। x इक्वल टू ई पर तो f डैश x जीरो हो जाएगा। अगर इससे आगे जाओगे तो f डैश x नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू e से ज्यादा पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू 1 से ज्यादा बड़ी हो जाएगी, और अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो x इक्वल टू ई से अगर आप आगे गए तो नेगेटिव साइन, और x इक्वल टू ई से पीछे जाओगे तो पॉजिटिव साइन। तो इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन x रेज टू द पावर 1 अपॉन x है, f(x) इज इक्वल टू x पावर 1 अपॉन x, ये e तक तो इंक्रीज कर रहा है, पॉइंट e तक तो ये इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद ये डिक्रीज कर रहा है। ओके, इंक्रीज और फिर डिक्रीज कर रहा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो अगर इसमें हम x की जगह e पुट करें तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, दैट इज e रेज टू द पावर 1 अपॉन e इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग ऑल द अदर सिमिलर नंबर्स विच आर pi raised to the power 1 by pi, 2 raised to the power 1 by 2, 3 raised to the power 1 by 3, 4 raised to the power 1 by 4। इस टाइप के जितने भी नंबर्स होंगे उन सभी में e raised to the power 1 by e ग्रेटेस्ट नंबर है, because at x equal to e this function is taking its maximum value। Therefore e raised to the power 1 by e is greater than pi raised to the power 1 by pi
and therefore e raised to the power e pi upon e is greater than pi raised to the power e pi upon pi. दोनों तरफ अगर e pi पावर ले लेंगे तब भी बात सेम रहेगी. e से e कट गया, pi से pi कट गया, therefore e raised to the power pi is greater than pi raised to the power e. This is the answer. All right. Now इसको कॉपी कर लीजिए. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 3 raised to the power 1 by 3, 4 raised to the power 1 by 4, 5 raised to the power 1 by 5, 6 की पावर 1 by 6, 7 की पावर 1 by 7, 8 raised to the power 1 by 8. इन सभी को अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो वो ऑर्डर क्या होगा? ई यहां पर आ गया. ओके, ई और यहां ओपन इंटरवल 0, ओपन इंटरवल 0 बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0. ई की वैल्यू होती है 2.71828, 2.718 बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली. 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, 3 के बाद 5, 6, 7, 8 and so on. Therefore this value is the largest. Sorry, e raised to the power 1 by e यहाँ है, e raised to the power 1 by e. उससे नीचे 3 raised to the power 1 by 3, उससे नीचे 4 raised to the power 1 by 4, उससे नीचे 5 raised to the power 1 by 5 and so on, because the function is decreasing. Therefore this is the correct answer. Alright students, so if you want to compare 2019 raised to the power 2020 and 2020 raised to the power 2019, then first of all convert this into the same constant. 2019 इधर है, इधर 2020 है. अगर दोनों तरफ 1 upon 2020 multiplied by 2019 पावर रेज करोगे दोनों तरफ, तो the inequality will change. Sorry, these expressions will change but the inequality will remain the same. And now you have to compare 2019 raised to the power 1 upon 2019 or 2020 raised to the power 1 upon 2020, and after e this function is decreasing and therefore this quantity is greater than that quantity and therefore this quantity is greater than that quantity. I hope आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.